ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ اس کہانی میں آپ کو ایک ایسی ہوس پرست لڑکی کے بارے میں بتایا جائے گا جس کی عمر 18 سال تھی مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے جذبات سے تنگ آ کر ایک 55 سالہ بوڑھے کے ساتھ ہی ساری حدیں پار کر دی۔ پھر جو بوڑھے نے اس کے ساتھ کیا اس کا حال دیکھ کر سب چیخ اٹھے۔ تو چلے سنتے ہیں یہ کہانی اس لڑکی کی ہی زبانی۔ 18 سال کی عمر اتنی بھی کم نہیں ہوتی جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ کم از کم میرے لیے تو یہ عمر بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ میں نے 18ویں سال میں 36 سالوں جتنا سفر طے کر لیا تھا۔ میری ماں اور میرا باپ جب میں ان دونوں کو رات کے کسی پہر دیکھتی تو اپنے آپ پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو جاتا، میرے اندر ایک آگ سی جل اٹھتی اور پھر باقی کی رات گزارنا میرے لیے ایک امتحان جیسا ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں میرا ذہن پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وہ خیال آتا تھا جو مجھ جیسی جوان لڑکی کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر تھا جس میں میرے ماں باپ، میں اور میری چھوٹی بہن ہم سب رہتے تھے۔ ماں باپ کی ایک چارپائی تھی اور میری چھوٹی بہن کی ایک۔ چھوٹی بہن تقریباً مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی، اسی لیے اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جن باتوں کی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں آدھی رات کو جب اپنے ماں باپ کی باتیں سنتی تو میرے کان کی لوئیں سرخ ہونے لگتی اور شرم سے میں کانپ اٹھتی۔ میرا باپ بہت کھلی ڈلی باتیں کرنے کا عادی تھا۔ آدھی رات کو جب اپنے ماں باپ کی میں باتیں سنتی تو میرے کان کی لوئیں تک سرخ ہو جاتی، میں شرم سے بھی کانپ اٹھتی۔ میرا باپ کیسی یہ باتیں کرتا تھا، اس کے لفظوں میں بڑی بے حیائی ہوتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور اپنے باپ کو بتاؤں کہ میں ابھی جاگ رہی ہوں، میرے سامنے تو یہ سب نہ کرے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کبھی میں اپنی آنکھوں کو کس کر بند کر لیتی تو کبھی بند جھروکوں سے دیکھتی۔ کبھی تو میرے جذبات مجھ پر اتنے غالب آتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں بس اٹھوں اور اپنے باپ کو پکڑ لوں اور کہوں کہ اب بس کر دے، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ لیکن بس میں سوچ کر ہی رہ جاتی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ہم کافی غریب تھے اور پھر اس پر ہر رات اس اذیت کو برداشت کرنا، اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو اس طرح کرتے دیکھنا، میں اپنے اندر ہی اندر ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی مجھے ملے جس کا ہاتھ پکڑوں اور اسے گھر کے کہیں دور لے جاؤں اور اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی قسمت بدلوں گی، کسی ہم سفر کو تلاش کروں گی اور اس کے ایک کمرے سے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ میں مزید اسی طرح تڑپ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب یہی بات میں نے اپنے ابا کو بتائی کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تو میرا ابا بہت زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تعلیم کے نام پر 4 جماعتیں پڑھی ہیں، تمہیں کوئی نوکری کون دے گا؟ یہاں اچھا بھلا انسان جوتے چٹکاتا پھرتا ہے۔ ابا کی بات یہ میری انا پر لگی۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا کہ دیکھیے گا، 4 دن میں نوکری تلاش کر لوں گی اور پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر ابا ایک تیز نظر مجھ پر ڈال کے کہنے لگے، ٹھیک ہے، جاؤ اپنا شوق پورا کر لو، لیکن اگر 4 دنوں میں نوکری نہ ملی تو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کانپا تھا، لیکن پھر اگلے ہی دن میں بند سور کر نوکری کے لیے نکل پڑی۔ اماں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ رات بھر ابا کو برداشت کرنے کے بعد صبح دیر تک سوتی اور پھر جب اٹھتی تو بھی اپنا تھکا ہارا وجود لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس تو جیسے کرنے کو بھی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر رات ابا کو برداشت کرنا اسے اپنے آپ میں ہی ایک مشکل سا کام لگتا تھا۔ اکثر تو ابا نشے میں لوٹتا اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح کی حرکتیں کرتا، اگلے دن اماں شرم کے مارے آدھا دن ہم سے اپنا منہ چھپاتے پھرتی۔ اماں کو اندازہ تھا کہ میں اب جوان ہو گئی ہوں اور مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، اسی لیے اماں اکثر ہی اپنے منہ پر پلو ڈال دیتی یا پھر مجھ سے ہی نظر نہ ملاتی۔ انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس دفتر جانا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ بس میں ایسے ہی گھر سے نکلی اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں بہت ساری فیکٹریاں ہوں اور مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی وہی میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی اور پھر وہ مجھے ایک فیکٹری کے آگے لے گیا، کہنے لگا، یہاں روز نئی لڑکیوں کی بھرتی ہوتی ہے، تم بھی قسمت آزما کر دیکھ لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فیکٹری کے اندر گئی تو پتا چلا کہ یہاں تھوڑی بہت پڑھی لکھی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابا کے سامنے تو بڑی باتیں کی تھی، لیکن دنیا کی الف بے تو پتہ بھی نہیں تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میرے مالک سے ملاقات کروا دو، میں خود اس سے اپنا مسئلہ بیان کر دوں گی۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ مالک ہر کسی سے نہیں ملتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں باہر واپسی کے لیے نکلنے لگی تو تبھی میری نظر ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک پینٹ کوٹ پہنا لمبا چوڑا آدمی اتر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی کمپنی کا مالک ہوگا۔
वो 55 साल के करीब था, मेरे अब्बा से भी उम्र में थोड़ा बड़ा। बेख्तियार मुझे अब्बा याद आ गया और अब्बा की वो बातें भी, जो अब्बा अम्मा से किया करता था। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर आदमी जज्बात में पागल होते हैं, इसीलिए मैंने किसी ख्याल के तहत अपना दुपट्टा सामने से हटा दिया, थोड़ा गला नीचे को सरकाया और अपने बाल खोले उसके पास पहुंच गई। मुझे किसी भी सूरत ये नौकरी चाहिए थी और साथ ही किसी का साथ भी। मैंने धीरे से उसे मुखातिब करके कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए। इस आदमी ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और फिर अपने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने बता दिया कि मैं भर्ती के लिए आई हूँ। वो आदमी मेरी खूबसूरती को नजरअंदाज ना कर सका। उसे सर से पांव तक एक आर पार होती निगाह मुझ पर डाली और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा हुलिया शरीफों वाला था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा खुद को अयां कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती खुलकर सामने आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट को देखा। मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे पहली जीत मिल गई हो, मगर मुझे क्या मालूम था कि मैंने खुद अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। मालिक मुझे अपने कमरे में ले गया और फिर अपने सामने बिठा लिया। कहने लगा, अपनी फाइल दिखाएं ताकि मैं देखूं कि आप नौकरी के काबिल हैं भी या नहीं। मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं थी। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन नौकरी करना चाहती हूँ। कुछ देर तक मुझे खामोश नजरों से देखता रहा और फिर उठकर मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या नौकरी करोगी? तुम्हें तो कोई नौकरी नहीं देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी, वो मेरे बिल्कुल करीब टेबल पर कुछ मेरी तरफ कुछ झुककर बैठा था कि मेरा सांस रुकने लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक नौकरी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत दिल लगाकर मेहनत से काम करना होगा। मैं हैरत से मालिक को देखने लगी कि पता नहीं वो मुझे कौन सी नौकरी ऑफर करने वाला है। इतना तो मुझे भी अंदाजा था कि मुझे इतनी आसानी से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली थी, और घर से बाहर निकल कर तो इस बात का मजीद मुझे यकीन हो गया था। इसीलिए मैंने मालिक से पूछा कि आप मुझे क्या नौकरी देना चाहते हैं। मालिक ने धीरे से मेरे बालों को मेरे कांधे से पीछे किया और फिर अपनी उंगली मेरी गर्दन पर फेरते हुए कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख सकता हूँ, हर वक्त मेरे साथ साथ रहना, जहां मैं जाऊंगा तुम्हें भी चलना होगा। मालिक का अंदाज ऐसा था कि मैं एकदम ही खुद वजूद को करंट से दौड़ गया था। पहली बार कोई गैर मर्द मेरे इतने करीब आया था। मेरे जज्बात सुलगते थे। रात वाली अब्बा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं शर्म से सर झुका गई थी, लेकिन मैं नौकरी का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी बात पर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि आज से ही अपनी नौकरी शुरू कर दो। तुम्हें इस कमरे में मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने कुछ घबराकर पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो मालिक उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे कोट के बटन खोलो। मैं एकदम ही हैरत से उसे देखने लगी तो उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हारी नौकरी शुरू हो चुकी है। मैंने जल्दी से उसके कोट के बटन खोले तो कहने लगा, अब ये कोट उतार कर साइड हैंगर पर लगा दो और साथ ही अपना दुपट्टा भी वहीं हैंग कर दो। मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें फैशनेबल भी बनना पड़ेगा। मैंने उसका कोट उतार कर हैंगर पर लगाया और साथ ही कुछ झिझकते हुए अपना दुपट्टा उतार कर भी वहीं लटका दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बस तुम्हें मेरे ऐसे ही काम करने हैं। इस अजीब सी नौकरी पर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह की ऑफर की थी, इसीलिए मैं इसी के कमरे में बैठ गई। कुछ देर वो दफ्तर के काम काज करता रहा और फिर खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरा आज का काम खत्म हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चली जाओ, अब कल सुबह आना। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 1 बजे थे। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो रही थी। मैं तो बड़ी खुशी खुशी खड़ी हुई और अपना सामान लिया और सीधा घर को पहुंच गया। अब्बा को नौकरी करते खबर सुनाई तो अब्बा को यकीन ही ना आया। अब्बा कहने लगे, झूठ कह रही हूँ। मगर जब मैंने अब्बा को बताया कि मैं फलां की सेक्रेटरी की नौकरी करने लगी हूँ तो अब्बा ने जैसे तैसे यकीन कर लिया। फिर कहने लगे कि तू जो भी कमाएगी मेरे हाथ में रख देना। अब्बा की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैंने फिलहाल कुछ भी ना कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात समा गई थी कि मुझे इस नौकरी से अपनी किस्मत बदलनी है। मैं नौकरी का यकीन आने के बाद अब्बा बड़ा ही खुश हो गया था। फिर वो खुद ही शाम को मिठाई भी लाया था और फिर अपने दोस्तों में चला गया। जब वो लौटा तो नशे में था और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब सारी रात क्या होगा। इसीलिए जल्दी से चारपाई पर लेटकर मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अब्बा ने अम्मा को कस के पकड़ लिया था और फिर वही बातें शुरू कर दी। अब्बा पूरे नशे में था और वो नशे की हालत में भी अम्मा के साथ ज्यादती कर रहा था। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, जबकि अम्मा की हल्की हल्की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी। अम्मा हमेशा की तरह अब्बा से पनाह मांग रही थी, लेकिन नशे में धुत अब्बा को अम्मा का ख्याल कब आता था। सारी रात ऐसे ही अजियत में गुजर गई थी और फिर अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर बाद मालिक भी आ गया। वो बहुत ही उजलत में क्या था। कहने लगा, आज हमें शहर से बाहर की तरफ जाना है, वहाँ हमारी नई फैक्ट्री तामीर हो रही है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी, लेकिन खैर ये मेरी नौकरी थी, इसीलिए मैं खड़ी हो गई। मैंने अपना दुपट्टा पहले ही हैंगर पर लगा दिया था और अपने हुलिये को
खुला कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे नौकरी इसी वजह से मिली है क्योंकि मैं बहुत ही हसीन थी, और ऐसी हालत में तो मेरा हुस्न मज़ीद दो आतिशा हो जाया करता था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली और फिर मालिक के पीछे-पीछे निकल पड़ी। इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आहिस्ता से आवाज़ देकर रोक लिया। मैं रुककर उसके करीब पहुंची तो कहने लगी कि तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ये नौकरी ना करो। मुझे इस लड़की की बात पर बड़ा गुस्सा आया। तो खुद तो सुकून से बैठी अपनी नौकरी के मजे ले रही थी और मुझे लगी कहने हजारों की नौकरी छुड़वाना चाहती थी। मैंने नफरत भरी उस पर एक नजर डाली और बाहर निकल गई। मालिक मेरा इंतजार गाड़ी में बैठे कर रहे थे। फिर मैं गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद हम शहर से बाहर पहुंच गए। वहां एक जगह बिल्डिंग तामीर हो रही थी। मालिक ने कुछ देर उसका जायजा लिया, मजदूरों से बातचीत की और फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। कहने लगे, गर्मी बहुत है, यहाँ से करीब ही मेरा फार्म हाउस है, कुछ देर वहां चलते हैं, आराम करेंगे। मुझे क्या एतराज हो सकता था। मालिक के साथ मैं इनके फार्म हाउस पहुंच गई। मालिक मुझे अपने साथ बेडरूम में ले गए। कमरे का एसी फुल पर चला और मुझे अपने साथ बिस्तर पर ही बैठने का इशारा किया। मैं कुछ फासला रखकर बैठ गई तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, बीना तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है। मालिक के इतने करीब होकर बैठने पर मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने धीरे से नजरें झुकाई तो मालिक ने ऐसी बात कही कि मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे मालिक से इस बात की तवक्को हरगिज नहीं थी। नौकरी के दूसरे दिन ही मालिक ने खुलकर मुझ पर अपने जज्बात का इजहार कर दिया था। वो कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस शादी के बारे में किसी को कुछ ना बताना। मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, इसीलिए लोग बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। मालिक की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी, क्योंकि मैं भी तो जज्बात की आग में सुलग रही थी। मुझे भी अपने घर से फरार चाहिए था। मालिक मुझे एक अलग घर देने को ही तैयार थे। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली। मालिक ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगे कि आज ही हम निकाह करेंगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने वहीं पर काजी और गवाहों का इंतजाम कर लिया और फिर मुझसे निकाह कर लिया। मैंने ना ही अपनी अम्मा के बारे में सोचा था और ना ही बाप के बारे में। अगर कुछ सोचा तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल का। निकाह के बाद सब लोग वापस लौट गए तो मालिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू किया। कहने को वो 55 साल के थे, लेकिन इनमें बड़ी ही ताकत थी। कुछ ही देर बाद मैं मालिक के आगे ढेर हो गई और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। रोजाना मैं दफ्तर आती तो मालिक किसी न किसी बहाने मुझे बाहर ले जाते और फिर वहां मेरे साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। मुझे भी ये सब बुरा लगता क्योंकि मैं मालिक की बीवी थी और हम दोनों के दरमियान एक जायज रिश्ता था। लेकिन एक महीना भी नहीं गुजरा और मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। मेरे माँ बाप को तो मेरी शादी की खबर ही नहीं थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले मालिक को यह खबर सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मालिक का चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर मालिक कहने लगे कि चलो मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, और मुझे अपने साथ लेकर निकले और कई घंटों तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर जब गाड़ी रुकी तो मेरी जान निकल गई। हम एक गाँव में थे और गाँव की एक हवेली में रुकी थी गाड़ी। मैंने हैरत से मालिक को देखा तो कहने लगे, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। ये मेरा गांव है, मैं यहाँ का वडेरा हूँ और शहर में मेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं। अब तो मेरा वारस पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहीं इस हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था और मालिक अचानक मुझे यहाँ लेकर आ गए थे। फिर जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखते ही फौरन हाथ बांधकर करीब आ गई और कहने लगी, क्या आप आने वाले थे? हमें इत्तला करते, हम आपके आने की तैयारी करते। मालिक ने इन तीनों को देखा और कहने लगे, इससे मिलो, ये मेरी बीवी बीना है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से ये इसी हवेली में रहेगी। वो तीनों हैरत से मुझे देखने लगी और फिर जब मालिक ने उनका तारुफ मुझसे करवाया तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मालिक कहने लगे, ये तीनों मेरी बीवियां हैं और तीनों ही मुझे बच्चा नहीं दे सकी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम मेरा वारिस पैदा करोगी। मालिक ने मुझे यही बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इन शादियों से कर ली थी। इनकी बातें सुनकर तो जैसे मैं हैरान हुई। इनकी तीनों बीवियां देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो तीनों गुस्से में कहने लगी कि हमारे पास खानदान से बाहर शादी का रिवाज नहीं है, फिर आप कैसे एक शहरी लड़की को रुखसत करवा कर लाए हैं? मालिक कहने लगे कि मैं कौन हूँ, इसे हमेशा के लिए साथ रखूंगा। ये बच्चा पैदा करेगी तो बच्चा तुम तीनों की गोद में आ जाएगा और फिर मैं इसे वापस शहर छोड़ दूंगा। मालिक ने मेरे सामने ही ये बात खुलकर कही थी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरत से मालिक को देखा तो वो कहने लगे, हम जमींदार हैं, हमारी शादियां जमींदारों में ही होती हैं। शहर की आवारा लड़कियां हमारी बीवियां बनने के काबिल नहीं होती। मैंने बड़ी मजबूरी में तुमसे शादी की क्योंकि मुझे अपने लिए वारिस चाहिए था। तुम यहाँ कुछ अरसे की मेहमान हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर उन्होंने अपनी बड़ी बीवी से कहा कि वो मुझे कमरे में बंद कर दे और इनकी बड़ी बीवी ने उनके हुक्म की तामील की और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती पीटती रह गई, दरवाजा बजाती रही, लेकिन किसी को मुझ पर रहम ना आया। मैंने अपने शिकम पर हाथ फेरा तो मुझे अपनी बदनसीबी पर रोना आने लगा। मैंने अपने अम्मा अब्बा से इतनी बड़ी बात छुपाई थी, शायद इसी की सजा मुझे मिली थी। मैं जिंदगी में
तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। काश कि मैं ये कदम न उठाती तो आज यहाँ ना होती। ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो उसे मुझसे छीन लिया जाएगा और मुझे कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। मैं अपना बच्चा कैसे इन 3 औरतों के हवाले कर सकती थी? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन मुझ में इतनी तो हिम्मत नहीं थी। सारी जिंदगी में अपने आप को अपनी माँ पर जुल्म ढाते हुए देखा था। मेरा बाप हर रात मेरी माँ के सामने अपनी आशिकी मशूकी के किस्से सुनाता था कि उनके जाने कितनी औरतों के साथ ताल्लुकात थे। वो जो भी कमाता उन्हीं औरतों पर लौटाता था। इसी बात पर अम्मा और अब्बा के दरमियान हर रात बहस होती थी। अम्मा जब भी अब्बा से कहती कि बेटियां जवान हो रही हैं, ये हरकतें ना करो, तो अब्बा कहते थे कि ये जवान नहीं हो रही हैं तो क्या करूं? अपने आप को देख कितनी बुढ़ी लग रही है। तुझे कौन सा खुशी हासिल नहीं कर सकती? बाहर की औरतें ही मुझे सुकून करती हैं। ये बातें सुन सुनकर मैं शर्म से चादर में छुप जाया करती थी। जब कभी अब्बा बहुत ज्यादा नशे में होता तो अम्मा को जबरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश करता। अम्मा अब्बा के दरमियान रोज रोज होने वाली इन बातों ने मुझे बहुत बागी कर दिया था। मुझे अपने घर से ही नफरत होने लगी थी। मेरा बाप जवान बेटी के होते हुए गैर औरतों में दिलचस्पी रखता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि अब्बा का गिरबान पकड़ूं और कहूं कि अब्बा मेरे सामने ऐसी बातें ना किया कर। जब वो बगैर औरतों के जिस्म की खूबियां बयान करते, शर्म से लाल पड़ जाती। अम्मा का हाल भी कुछ ऐसा ही होता। अम्मा को अंदाजा था कि मैं रात जागती हूँ, इसीलिए अगले दिन अम्मा मुझसे नजर तक ना मिलाती थी। इस सब से तंग आकर ही तो मैं घर से निकली थी और चाहती थी कि मुझे सुकून की जिंदगी मिल जाए, पैसा और एक ऐसा मर्द जो मेरा ख्याल रख सके। बड़े उम्र के आदमी से भी मैंने यही सोचकर शादी की थी कि वो मुझ जैसी जवान बीवी को हासिल करेगा तो कभी अब्बा जैसे शिकवे शिकायतें नहीं करेगा। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैंने अपने हाथों ही अपनी कब्र खोदी थी। मुझे इस हवेली में बंद रहते रहते कई महीने गुजर गए थे। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती चली जा रही थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मेरी 3 सौतनें मेरे पास आती तो मुझसे बहुत बुरा रवैया रखती, मुझे बुरा भला कहती और साफ लफ्जों में जताती कि बच्चा पैदा होते ही मुझे वापस शहर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरी ज़हनी अज़ियतों की वजह से बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और डॉक्टर ने बताया कि अब मैं शायद कभी मां ना बन सकूं, क्योंकि काफ़ी पेचीदगियां हो चुकी थी। मुर्दा बच्चे को देखकर मेरा मालिक चीख चीख कर रोने लगा था। वो कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था और बच्चे की खातिर ही उसने ये गलत तरीका अपनाया था। शायद इसीलिए कुदरत ने एक दफा फिर उसे खाली गोद छोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि अब मैं मां नहीं बन सकूंगी तो उसने मुझे वापस मेरे घर छोड़ दिया और साथ ही मुझे तलाक भी दे दी और मैं बर्बाद होकर वापस घर लौटी थी। लेकिन हाथ तो मेरे मालिक के भी कुछ नहीं आया था। मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई, रो रो कर पूछ रही थी कि मैं इतने अरसे कहाँ थी। मैंने शुरू से आखिर तक अम्मा को सब कुछ सच से बता दिया। अम्मा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहने लगी, ये सब मेरी गलती है। जब एक औरत एक गलत मर्द के साथ मजबूरन जिंदगी गुजारती है तो उसके बच्चों की इसी तरह जिंदगी बर्बाद होती है। अगर एक औरत सही वक्त पर अपने हक में आवाज नहीं उठाती और अपने शौहर से अलहदगी नहीं इख्तियार करती तो फिर उसके बच्चे सारी जिंदगी ऐसे ही ठोकरें खाते हैं। काश मैं सही वक्त पर तेरे बाप की हरकतों को देखते हुए एक रास्ते अलग कर लेती इनसे, तो तू इन गलत रास्तों पर कभी कदम न रखती। आज मैं दोबारा से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी हालत देखकर मेरा अब्बा सुधर गया है। उसे पता चल गया है कि उसके गलत कामों का नतीजा क्या निकला है। मैंने भी अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सजा भुगती है, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया खुशियों से भी नसीब नहीं हो सकी। तब से ही अपनी अपनी गलतियों का सब खमियाजा भुगत रहे हैं।